So, well, last time we have discussed tangential line integral. Okay. So, ये जो इसके बाद के जो लेक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स सॉल्व करेंगे, उनको प्रूव करेंगे, लाइक ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. ओके, ये तीन थ्योरम्स हैं, ठीक है. और बेसिकली इन तीन थ्योरम्स में इन वेक्टर कैलकुलस देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सिंगल एंड डबल इंटीग्रल, मींस टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल. And in Gauss divergence theorem, we have relation between surface integral and volume integral. So, before we move Green's theorem or Stokes theorem, okay, let us today define what is surface integral. Okay, what is surface integral? And after that, after solving few problems of surface integral and after basic understanding of surface integral, okay, then we will start first theorem, Green's theorem. Okay. So, today's topic is normal surface integral. Okay, normal surface integral. So, here this x, y, z axis origin and this one is a surface, and divide this whole surface into small subsurfaces, delta S1, delta S2, delta S1, delta Si, delta Sn, okay, and P be any point on this surface having position vector r. Okay. So, consider a continuous function fr, continuous function fr and a two-sided surface S. Okay. So, we consider here a continuous function fr and a two-sided surface S. Now, divide this surface S into a finite number of subsurfaces, delta S1, delta S2, delta Si, delta Sn. Okay. So, सबसे पहले हमने एक फंक्शन को कंसिडर करना, एंड द ब्यूटी ऑफ दैट फंक्शन इज डिफाइंड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस. ओके, सो कंसिडर दिस टाइप ऑफ continuous type of vector point function and two-sided surface S. This surface is open, right? In two-dimensional problem, this surface is open. Now, divide this surface S into a finite number of subsurfaces. Finite number of subsurfaces, right? Let surface element surrounding any point PR be delta S, be delta Si. So, this delta Si, okay, delta Si, which can be regarded as a vector, okay, its magnitude being the area and its direction that of the outward normal to the surface. देखिए ये P point है और इस P point पे इसको आप 3 कर लीजिए. Okay, this one is delta S3, so delta Si. So, delta Si with a small area, small subsurfaces, okay, having this point P. अब देखिए ये जो surface है इसके इस तरफ ये जो डायरेक्शन है ये हो गया नॉर्मल डायरेक्शन. एन कैप इज द यूनिट वेक्टर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल at this point. Okay. So, this its magnitude being the area and the direction that of the outward normal to the element. Okay. तो इसकी जो direction है that one is towards this direction. Okay. Now, consider the summation I 1 to n fr dot delta Si. So, this means delta Si is vector here, okay, and the direction of this delta Si is outward normal drawn through that point, okay, outward normal drawn through that point, okay, where summation extend over all the subsurfaces. So, we consider this type of sum, okay, I 1 to n f dot delta Si. S is vector, right? F is vector, R is position vector. So, question is what is surface integral? Okay, what is surface integral? As we have already discussed double integral, on the same line here we can define surface integral, the limit of this sum. Okay, the limit of this sum as the number of subsurfaces tends to infinity, that is n tend to infinity. एंड एज n टेंड टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ कन्वर्ज करेगा आपका जो स्मॉल सब सर्फेसिस है दैट टेंड टू जीरो. क्लियर, दैट टेंड टू जीरो. डेल्टा Si टेंड टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा Si टेंड टू जीरो. सो कंसिक्वेंटली द एरिया ऑफ ईच सब सर्फेसिस टेंड्स टू जीरो. ओके, सो लिमिट ऑफ दिस सम as n tend to infinity, then consequently magnitude of delta Si tend to 0 is called normal surface integral.
is called normal surface integral of FR over S and is denoted by इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट डी एस, ओके, और ds को आप इस ढंग से लिख सकते हो, राइट, n कैप ds, s is small, okay, so here s is vector, clear, so integral f dot n cap ds. What is n cap? N cap is nothing but unit outward drawn, okay, normal at p to the surface s. ठीक है, अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, इस सरफेस की बात करूं, ठीक है, ये ds है, ds को मैं लिख सकता हूं n कैप d स्मॉल s, तो ये जो n कैप है ये इस डायरेक्शन में होगा, ओके, इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल एट p टू द सरफेस s, ओके, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल एट p टू s. अब देखो बॉल को ले लो आप, इस बॉल के अंदर या कैप को ले लो आप, कैप के ऊपर एक पॉइंट मैं कंसीडर करता हूं, ठीक है, उस पॉइंट से जो n कैप होगा वो बाहर की तरफ होगा, n कैप नीचे की तरफ भी हो सकता है, ओके, बट मैं यहां पे कंसीडर एन कैप करूंगा दिस आउटवर्ड नॉर्मल एट पी ऑफ दिस सरफेस एस, ओके. तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है दैट वन इज ए सरफेस इंटीग्रल, ओके, एंड दैट सरफेस इंटीग्रल इज नोन एज नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल. और जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था लाइन इंटीग्रल, उसको कहते हैं टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल, ओके. हियर वी हैव नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल. तो जब भी आपको सरफेस इंटीग्रल की प्रॉब्लम आए वेक्टर कैलकुलस में, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एफ आपको दे रखा होगा, आपको ds की वैल्यू को इवेल्युएट करना है, और ds की वैल्यू कैसे दे रखी होगी? सरफेस की इक्वेशन दे रखी होगी, और अगर सरफेस की इक्वेशन दे रखी होगी तो आप n कैप निकाल सकते हो, एंड दैट n कैप इज ग्रेडियंट f डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट f. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है. अगर सरफेस की इक्वेशन दे रखी हुई है, ठीक है, तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालनी है, ओके, तो वो फार्मूला इवेल्युएट करके n कैप की वैल्यू को आप निकाल सकते हो. और उसके बाद प्रॉब्लम रहेगी ds. जब आप डबल इंटीग्रल में इसको प्रॉब्लम को शिफ्ट करोगे, ठीक है, तो ds की वैल्यू dx dy भी हो सकती है, dy dz भी हो सकती है, dx dz भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन आवर चॉइस, ओके. So this integral over s f dot ds. So mathematically this can be written as limit n tend to infinity magnitude of delta si tend to 0 summation f r dot delta si. So this can be written as f dot ds integral over s, and this ds is n cap ds, okay, n cap ds. So only one integral sign is used when there is one differential, okay, say dr or ds, and two signs when there are two differentials, okay. तो जब भी मैं ds को रिप्लेस करूंगा, प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे, जब मैं ds को रिप्लेस करूंगा dx dy में, तो आपने दो इंटीग्रल के साइन यूज करने हैं, ओके. सो वन मोर डेफिनेशन, फ्लक्स अक्रॉस ए सरफेस, क्लियर. सो इफ f represents the flux, if f represents the flux, then the total outward flux of f, total outward flux of f across a closed surface s is this integral over s f dot ds. So if f represent the flux, then this surface integral is nothing but total outward flux of f across a closed surface s. And one more definition, solenoidal vector point function. When the flux of f across every closed surface s in the region E vanishes. When the flux of f across every closed surface s in a region E vanishes, then f is said to be a solenoidal vector point function in the region E. Okay. तो आप चेक करिएगा, if this surface integral is 0, then that vector point function is called solenoidal vector point function. Okay. And if f is the flux, then this integral is nothing but total outward flux of f. Clear? So then question arises, what is the value of ds? Okay, what is the value of ds? तो हमारे पास प्रॉब्लम है इंटीग्रल ओवर s f dot ds, and ds is equal to n cap d small s. Now question is, how can we evaluate this d small s? Okay, so देखिए ds की वैल्यू dx dy अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, तो आपको डिनोमिनेटर में क्या करना है, n cap dot k cap, ये जो k cap है,
that one is towards the z direction, unit vector towards the z direction. तो देखिए यहाँ वो missing है तो आपने k cap यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. So in that case this double integral problem f dot n cap ds is f dot n cap dx dy divided by n cap dot k cap. अब देखिए अगर मैं dy dz करूं तो यहाँ dy dz x गायब है तो मैं यहाँ पे करूंगा i cap, क्लियर. और अगर मैं करूं dx dz तो y गायब होगा तो यहां पे लिखना पड़ेगा j cap. इतना सी वेरिएशन है, क्लियर. सो ए सरफेस इंटीग्रल इज इवेल्युएटेड, दिस ए सरफेस इंटीग्रल इज इवेल्युएटेड बाय रिड्यूसिंग इट टू द डबल इंटीग्रल बाय प्रोजेक्टिंग द गिवन सरफेस s onto one of the coordinate planes and let d be the projection of s on the xy plane. Then ds can be written like this way, where n cap is the unit outward drawn normal to s. Okay, the right hand side double integral, this right hand side double integral in x y over the plane region d is evaluated as a two-fold iterated integral. In a similar way, the surface integral can be evaluated by projecting s onto the xz plane as d1 and xz plane as d2 as follow, like this way. Okay, तो अगर आप ds को चेंज कर रहे हो dy dz में तो यहां पे मैं लिख रहा हूं i cap. अगर मैं ds को चेंज कर रहा हूं dx dz में तो मैं ये लिख रहा हूं j cap. तो आपको ये एक्सप्रेशन जो है वो याद रखने हैं, ठीक है. when you calculate the surface integral type of problems, remember how can we evaluate n cap as well as what is the value of ds, ठीक है. तो ये जो ds की वैल्यू dx dy करना है, ये dx dz करना है, ये dy dz करना है, ठीक है. ये काफी कुछ आपको डिपेंड करेगा कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है. सपोज x और z की वेरिएशन दे रखी हुई है, x और z की वेरिएशन दे रखी हुई है, तो आप प्रॉब्लम को इस ढंग से फॉर्मुलेट करिए कि आप x और z लिखिए और यहां पे डॉट j कैप करिए, ठीक है. बिकॉज जब आप dx dy करोगे तो x की x1 x2 z1 z2 लिमिट्स आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है. अदरवाइज आप कुछ और डिफरेंट यूज करोगे, ठीक है, वेरिएबल्स यूज करोगे तो उस केस में आपको जो लिमिट्स है वो इवैल्यूएट करनी पड़ेंगी. तो आप प्रॉब्लम को देख लिया करो, प्रॉब्लम में क्या दे रखा हुआ है और अकॉर्डिंगली, ठीक है, ds की वैल्यू को प्लान किया करो. ओके, नाउ सरफेस एरिया ऑफ ए कर्व्ड सरफेस. So let S be the surface represented by the equation. Suppose f x y z is equal to 0 be the equation of this surface. Then what is the unit vector to the surface S? तो अगर आपको कोई भी सरफेस एरिया दे रखा हो और आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे? ग्रेडियंट f divided by magnitude of gradient f, and in this case gradient f is fx I cap plus fy j cap plus fz k cap divided by magnitude of gradient f is fx square plus fy square plus fz square. So where fx, fy, fz are partial derivatives of f with respect to x, y, z respectively. Let d be the projection of s into the xy plane. D be the projection of s onto this plane xy plane, clear. Then in that case s total surface area of s is double integral over s ds. Okay, and that can be written as, देखिए यहाँ पर एक ही इंटीग्रल का साइन लगना चाहिए था, ठीक है, एक ही इंटीग्रल का साइन लगना चाहिए था क्योंकि एक बार मैं डिफरेंशियल का यूज कर रहा हूँ, राइट. नाउ दिस रिजल्ट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर d dx dy डिवाइडेड बाई n कैप डॉट k कैप. ये मैं k कैप क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि dz एलिमिनेट किया गया है, राइट. एंड दिस कैन बी रिटन एज in this problem double integral over d, okay, dx dy as it is, and n cap dot k cap. So fz. So fz magnitude, and here fx square plus fy square plus fz square under root. Okay, where n cap dot k cap is equal to this. So substitute this value. So that one is the surface area of S. Okay, and if the equation of the surface S is z is equal to fxy, okay, then surface area this can be reduced to double integral 1 plus zx square plus zy square dx dy. Okay, so in that case we can evaluate like this way. Okay, this surface area is this. Now how can we define flux? Okay, so flux is defined like this way: S is equal to double integral f dot n cap ds. So sorry, here again we have single integral. Okay, integral over S f dot n cap ds. So the normal component f dot n cap is scalar, right,
and rho be the density, v is the velocity of a fluid, and F is equal to rho v. Then flux F represents the total quantity of fluid flowing in a unit time through the surface S in the positive direction. So the flux of F across S is given by the flux integral, and that one is S is equal to integral over S F dot n cap ds. So this type of surface integral is also known as flux of F, if F represent this total quantity of the fluid flowing in the unit time. Okay. So keeping in mind all these things regarding unit normal and the value of ds, okay, and the concept of surface integral, solve this very important problem. If velocity vector is f, which is equal to y I cap plus 2 j cap plus x z k cap meter per second, show that the flux of water through the parabolic cylinder y is equal to x square, x in between 0 to 3, z in between 0 to 2 is 69 meter cube per second. Okay. So we have to evaluate the flux of water. Flux of water can be evaluated by S is equal to integral F dot n cap ds. Okay. So solve this type of problem. And we can ask this type of problem like this. We calculate the flux of water through the parabolic cylinder y is equal to x square between the planes x0, z0, x3, z2. If the velocity vector is a is equal to y I cap plus 2 j cap plus x z k cap meter per second. Okay. So velocity vector, here we have given this velocity vector. Okay, y I cap plus 2 j cap plus x z k cap. So calculate this surface integral problem. This question is very, very important. Okay. So since we know that the flux of water through the parabolic cylinder is evaluated by the formula, okay, integral over S F dot ds, and this expression can also be written as integral over S F dot n cap ds, because this ds can be written as n cap ds, S here small. Okay. Where n cap, what is n cap? N cap is a unit vector normal to the parabolic surface fxy is equal to x square minus y is equal to 0. So we have given y is equal to x square, so x square minus y is equal to 0. So that one is the parabolic cylinder. तो ये आपको एक surface दे रखा हुआ है, और अगर surface दे रखा हुआ है तो आप n cap आसानी से निकाल सकते हो. How can we evaluate n cap? Gradient f divided by magnitude of gradient f. So when you calculate n cap, we get gradient f divided by magnitude of gradient f. That one is 2x I cap minus j cap and divided by under root 4x square plus 1. This one is n cap. तो n cap की वैल्यू आप निकाल सकते हो. अब देखिए यहां पर x की वेरिएशन दे रखी हुई है और z की वेरिएशन दे रखी हुई है. ठीक है. तो आप ds की वैल्यू कैसे बनाओगे? dx dz, dx एंड dz. ओके. और डिवीजन में क्या करोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप डॉट j cap. Okay. So first calculate f dot n cap, because we need f dot n cap. N cap is this, f is given, right? So f dot n cap is, f is this value, okay, y I cap plus 2 j cap plus x z k cap, and n cap is this value, right? So this dot this is 2xy minus 2 divided by 4x square plus 1 under root. So that one is f dot n cap. तो जब भी आप वैल्यू को इवैल्यूएट करोगे तो आपने ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है. Now question is, how can we evaluate ds? Okay. Now ds is equal to dx dz divided by magnitude n cap dot j cap. J missing है, y missing है, right? So n cap dot j cap. तो n cap dot j cap. तो अब देखिए आपके पास n cap ये दे रखा हुआ है, okay? And dot j cap ये आप कैलकुलेट करिए. ठीक है. जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपका बनेगा 1 divided by 4x square plus 1, 4x square plus 1. So this one is f and this one is n. This one is n. So dot j cap. So we get magnitude. So here minus 1. So plus 1 divided by 4x plus 1. So 1 divided by 4x square plus 1 under root. So that one is the value of ds. Okay. Now calculate this surface integral f dot ds. Come to the main point. Okay. So integral over s f dot ds is integral over s f dot n cap ds. Okay. अब देखिए substitute the all values. F dot n cap is this, ds is this, dx dy, x varies from 0 to 3, z varies from 0 to 2, and this term cancel. Okay. We get only 2xy minus 2 dx, x varies from 0 to 3. Okay. And then integral 0 to 2 dz. So first solve inner integral and then outer integral, you will get the
रिजल्ट। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व करिएगा। अब देखिए यहाँ पे x और z है, यहाँ पे y की वैल्यू है, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या पुट करनी है आपने, x स्क्वायर। ओके, सो पुट y इज इक्वल टू x स्क्वायर हियर, okay, and simplify. Okay, so after solving all these integrals you will get 69 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या दे रखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो f दे रखा हुआ है, ठीक है, और सरफेस की इक्वेशन दे रखी हुई है, ठीक है, सरफेस की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस मीन्स दैट एक्स स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0। वी हैव गिवन दिस इक्वेशन, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 means x square minus y is equal to 0, the equation of the surface is given। and तीसरी चीज क्या दे रखी हुई है, x और z की वेरिएशन दे रखी हुई है, and that one is more useful for evaluating this double integral type of problem। okay, अगर वो नहीं दी होती तो आपको फिर वही कंसेप्ट यूज करते हैं जो डबल इंटीग्रल में लगाते हैं। ठीक है ना, सरफेस दे रखा हुआ है, कंसीडर ए स्ट्रिप which is parallel to x axis or y axis depend upon our choice, and then find the limits of variation of y and variation of x, and then solve the problem। but here problem is very simple because here we have given the variation of x and variation of z। clear, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को आप एक बार जरूर सॉल्व करके देखिएगा 69 मीटर क्यूब पर सेकंड आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, now one more question, this question is very very important। okay, this question is very very important। ठीक है, तो वैसे आप जब इस प्रॉब्लम को करोगे, ठीक है, तो पहले खुद सॉल्व करके देखिएगा कि खुद सॉल्व करके आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ठीक है, और इसमें बहुत डिफिकल्ट पार्ट्स भी हैं। ठीक है, और उस डिफिकल्टी की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर, सो इवेलुएट दिस सरफेस इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट डी एस। देखिए प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, f आपके पास दे रखा हुआ है, f is this and s is a triangle surface with vertices 2 0 0 0 2 0 and 0 0 4। तो एक ट्रायंगल सरफेस है और उन जो ट्रायंगल सरफेस है उसके वर्टिसेस आपको दे रखे हुए हैं। ठीक है, और अब सिर्फ सरफेस की इक्वेशन नहीं दे रखी हुई है, आपको सरफेस की इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अगर सरफेस की इक्वेशन बन गई, ठीक है, तब तो आप एन कैप भी निकाल लोगे, ग्रेडियंट एफ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट एफ। बट सरफेस की इक्वेशन निकालना सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है यहाँ पे। ठीक है, नाउ वी कैन आस्क दिस प्रॉब्लम लाइक दिस वे, इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट डी एस वेयर एफ इज दिस एंड एस इज द ट्रायंगुलर सरफेस। ये देखिए यहाँ पर सरफेस की इक्वेशन बना के दे दी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों प्रॉब्लम को कंपेयर करके देखो तो इन पॉइंट से जो सरफेस बनेगा वो ये बनेगा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा होगा तो ये तो आपको निकालना है, और अगर ये दे रखा होगा तो प्रॉब्लम थोड़ी सी सिंपल है। ठीक है, नाउ सिंस वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द ट्रायंगल surface with vertices 2 0 0 0 2 0 and 0 0 4 is x over 2 plus y over 2 plus z over 4 is equal to 1, right? If we know these 3 points of a triangle, then you can evaluate the equation of the triangle. Okay, so that one is the equation of the triangle. Okay, this surface, equation of this surface, not triangle, equation of this surface, 2x plus 2y plus z is equal to 4। तो ये वही इक्वेशन है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल सरफेस है। देखिए अब आपको ये सरफेस इंटीग्रल निकालना है। बेसिकली आपको एक ही सरफेस इंटीग्रल निकालना है। ठीक है ना, तो आपको जो सरफेस इंटीग्रल निकालना है वो इन 3 पॉइंट्स को टच कर रहा है। ठीक है ना, ये जो सरफेस है, ठीक है ना, ये जो फ्रंट वाला सरफेस है वो निकालना है, ये पोर्शन नहीं निकालना है, इसकी बात नहीं हो रही है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसकी बात नहीं हो रही है, ना ही ये पोर्शन निकालना है और ना ही ये पोर्शन निकालना है। आपको इन तीनों से जो मिलता है, ठीक है ना, ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक भी करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं, वो चारों सरफेसेस का वो सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पर हमें सिर्फ एक जो फ्रंट वाला सरफेस है, ठीक है ना, ओके, विद वर्टिसेस दिस, ठीक है ना, वही आपको इवेलुएट करना है। ओके, सो सिंस n cap is the unit vector normal to this surface, okay, then n cap is gradient f divided by magnitude of gradient f. So when you calculate this n cap in this problem, you will get 2i cap plus 2j cap plus k cap is equal to 3। और उसके बाद आप निकालिए f dot n cap। Clear? So f dot n cap is f, the value of f is this, n cap value is this, so ultimately f dot n cap is 2x plus 2
z square minus zx minus xy divided by 3. So this one is f dot n cap. क्लियर? आपको कैलकुलेट क्या करना है, इंटीग्रल f डॉट n कैप ds, इंटीग्रल f डॉट n कैप ds, ये आपको कैलकुलेट करना है. अब ds क्या कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है? अब देखिए ds को मैं ले रहा हूं dx dy, क्योंकि इस प्रॉब्लम में x और y की वेरिएशन दे नहीं रखी हुई है, ना ही x z की दे रखी हुई है, कुछ भी नहीं दे रखा हुआ है, ठीक है? तो आप अपनी चॉइस से इस प्रॉब्लम को कर सकते हो. आप इस प्रॉब्लम को 2 डायमेंशन में ले आइए, और सिंपलेस्ट 2 डायमेंशन होता है एक्स वाई प्लेन. क्लियर? तो मैं उस प्रॉब्लम को इस ढंग से सॉल्व कर रहा हूं. ds इज इक्वल टू dx dy डिवाइडेड बाई n कैप डॉट k कैप. सो n कैप इज दिस, डॉट k कैप मींस 1/3, सो 1/3. सो दिस ds इज इक्वल टू dx dy 1/3. अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है? जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है, तो आपका इस टाइप का एक्सप्रेशन आगे मूव करेगा. वेयर s इज द सरफेस दिस, एंड दिस सरफेस लाइंग इन द फर्स्ट ऑक्टेंट. क्लियर? अब देखिए f डॉट n कैप, f की वैल्यू ये है, n कैप की वैल्यू ये है, और ds की वैल्यू dy dx, dy dx डिवाइडेड बाय 1/s. ओके, एंड f डॉट n कैप की वैल्यू ये है, ये वैल्यू जो है वो है f डॉट n कैप की, और ds की वैल्यू है dy dx डिवाइडेड बाय 1/3. सो अल्टीमेटली दिस 3 एंड दिस 3 कैंसल, सो वी ऑब्टेन दिस रिजल्ट. अब क्वेश्चन ये उठता है, ये लिमिट्स कहां से आई, ठीक है? आप देखिए, बैक चलिए, आपके पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4. सो प्रॉब्लम इज 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4. तो जब आपकी प्रॉब्लम 2 डायमेंशन में है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, तो आप यहां से लिमिट्स कैलकुलेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं, z की वैल्यू 0 पुट करके आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, सो y इज इक्वल टू 2 माइनस x. सो y वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 माइनस x. देखिए ये ट्रायंगल बन रही है आपकी, ये ट्रायंगल बन रही है, इस टाइप की प्रॉब्लम बन रही है, ठीक है? जब आप इसी डायरेक्शन में करोगे x और y, ठीक है, तो ये यहां से कोई भी स्ट्रिप आप ले लो, विद रिस्पेक्ट टू x ले लो, विद रिस्पेक्ट टू y ले लो, ठीक है? तो आप कोई भी स्ट्रिप ले सकते हो, ये स्ट्रिप आपने ले ली, ठीक है ना? ये यहां से चलेगी 0 टू दिस, y1 0 टू दिस. ओके, सो y1 वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 माइनस x, एंड दिस स्ट्रिप स्लाइड फ्रॉम दिस x1 टू x2. सो x1 इज 0 एंड x2 इज 2, सो 0 टू 2. ओके, और अब देखिए यहां पर z ये 2 बार z आ रहा है, तो z की वैल्यू यहां से इवैल्यूएट की जा सकती है. ओके, z इज इक्वल टू 4 माइनस 2x माइनस 2y. तो जब आप z की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो प्रॉब्लम में x और y वेरिएबल आएंगे, ठीक है? और x और y की जो लिमिट्स हैं वो इस ढंग से कैलकुलेट करके आप यहां पे लिख सकते हो. ओके, सो अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ z स्क्वायर एंड कैलकुलेट दिस डबल इंटीग्रल प्रॉब्लम. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे z की वैल्यू 0 करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, वो गलत है, ठीक है? अभी तो आपको प्रॉब्लम शुरू हुई है, ठीक है? अभी तो z की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है? अदरवाइज ये सारी प्रॉब्लम गड़बड़ा जाएगी, ठीक? तो अब आप इस डबल इंटीग्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ठीक है? हर स्टेप्स को, इस स्क्वायर्स को थोड़ा क्लियर कर लो, ठीक है? एंड देन सॉल्व दिस पार्ट. ओके, देन सॉल्व इनर इंटीग्रल फर्स्ट. क्लियर? 0 टू 2 माइनस x, और ये वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है? एंड देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ रिजल्ट, लिमिट्स 0 टू 2, एंड फाइनली वी गेट 10. ओके, तो आप इस प्रॉब्लम को पहले खुद ट्राई करिए, और फिर देखिए 10 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? तो इस टाइप की प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा देख लो. क्लियर? तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है, एक एन कैप कैलकुलेट करना. एन कैप आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा है, एन कैप कैसे कैलकुलेट किया हुआ है. उसके बाद आप सेपरेटली एफ डॉट एन कैप निकाल करके ये आप यहाँ पे फिट कर सकते हो, ठीक है? और ds की वैल्यू dy dx की फॉर्म में लेके आनी है, ठीक है? सो ds इज इक्वल टू dx dy डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप डॉट j कैप, n कैप डॉट k कैप. क्लियर? सो n कैप डॉट k कैप इज 1/3, सो dy dx 1/3, and then substitute the value of z from this surface equation. Okay, and then for finding the limits, put z is equal to 0, calculate the value of y, and then put y is equal to 0, calculate the value of x. Clear? So you will get these type of limits. Okay, now
Last problem. Okay. Last problem is solve this surface integral f dot n cap ds. Solve this surface integral problem. F is given and S is closed surface. S is closed surface, okay, of the region in the first octet. So understand, first octet bounded by the cylinder y square plus z square is equal to 9 and the planes x0, x2, y0, z0. So these are planes. ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है. अब आप देखिए S is a closed surface. S is a closed surface. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सरफेस इंटीग्रल है, ये जो सरफेस इंटीग्रल है, ये टोटल सरफेस इंटीग्रल है, कंप्लीट सरफेस इंटीग्रल है. और सरफेस इंटीग्रल जो है, ये सरफेस जो है ये क्लोज्ड है, ठीक है. तो इसके टोटल सरफेस कितने बने? टोटल सरफेस देखिए, एक तो ये बना, यहां से चला, एक तो ये बना, ठीक है ना, ओ ए ई बी, एक तो ये बना, दूसरा बना ओ ए डी सी, ये बना, ठीक है. दो सरफेस ये हो गए और इन दोनों सरफेस में एन कैप निकालना बहुत आसान है. इस सरफेस में एन कैप होगा माइनस के कैप, यहां पे होगा माइनस जे कैप. इन दिस डायरेक्शन के, ओके, इन दिस डायरेक्शन के कैप, ओके, मींस दिस वन इज जेड एक्सिस, दिस वन इज जेड एक्सिस. क्लियर. और तीसरा सरफेस, दो सरफेस हो गए, तीसरा सरफेस होगा ए ई डी ए, ये जो आपका इस टाइप का सरफेस है, ये सरफेस, ये फ्रंट वाला, ये आपका तीसरा सरफेस हो गया. और चौथा सरफेस हुआ ओ बी सी ओ, ये आपका चौथा सरफेस हो गया. और एक और सरफेस है, वो है ई बी सी डी, ये जो कर्व सरफेस है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम इज इक्वल टू सम ऑफ 5 surface integrals, sum of 5 surface integrals. Clear? And solve these type of surface integrals. So the given closed surface S is piecewise smooth and is comprised of S1, the rectangular face OAEB. So this surface is S1. Okay. Then S2, the rectangular face OADC. So this one is S2. Then S3 is the circular quadrant OBC, backside. Okay, so that one is S3 backside. S4 is the circular quadrant AED. So this front circular quadrant is this S4. So this one is S4. And S5 is the curved surface. This curved surface, right, is S5. So this S5, this curved surface, BCDE of the cylinder in the first octet. Okay, first octet. तो ये 5 surface integral आपको इस प्रॉब्लम में सॉल्व करने हैं. This means this surface integral f dot n cap ds is integral over S1, integral over S2, integral over S3, integral over S4 and integral over S5. Clear? अब देखिए इंटीग्रल ओवर S1, f आपके पास दे रखा हुआ है, n कैप क्या होगा, ये जो नीचे का है इसमें n कैप होगा नीचे माइनस के कैप, सो माइनस के कैप ds. तो रिजल्ट यहां से आएगा और यहां से आएगा. सो k कैप डॉट k कैप इज 1 and this plus and minus, so minus 4xz square ds, xz square ds. But in this point, on this surface, z is equal to 0. Z is equal to 0 on the xy plane. So when z is equal to 0, so answer of this surface integral is 0. Clear? Now S2 आपका ये है. S2 is n cap is this, and at this direction n cap is toward this direction, means minus j cap. So minus j cap. So minus and minus plus, j cap dot j cap is 1 and minus y square. So minus y square ds. But at this point y is 0. So y is 0. So this integral is 0. So y is 0 in the xz plane. तो दो इंटीग्रल तो आपके 0 बन गए. ये भी आपका 0 बन गया, ये भी आपका 0 बन गया. अब S3 कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. S3 is integral over S3 f dot n cap ds is this, the value of f and n cap. ये S3 कौन सा है? S3 है आपका ये फ्रंट वाला. ठीक है ना. ये S3 is this बैक साइड वाला. S3 is this. ओके. सो इसका जो नॉर्मल होगा वो बाहर की तरफ होगा,
जो बैक साइड होगा ये x एक्सिस है, तो परली तरफ माइनस x एक्सिस मींस माइनस i कैप. सो माइनस i कैप, हियर i कैप डॉट i कैप इज 1 and 2x square y. So 2x square y and sign minus, okay, ds. But here at that point x is 0. So when x is 0, so third integral value is also 0. क्लियर. तो तीन आपके सरफेस इंटीग्रल जो है, एक ये और एक ये बैक, ये तीनों के तीनों 0 है. ठीक है. अब आपके पास एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, एक ये बचा. ये दो सरफेस इंटीग्रल्स आपको अभी कैलकुलेट करने हैं. देखिए इंटीग्रल ओवर S4 आपका ये फ्रंट वाला है. ठीक है. जब फ्रंट वाला है तो टूवर्ड्स x एक्सिस मींस i कैप n कैप and the value of f is as it is. Okay, so this I cap dot I cap is 1, right? So 2x square y ds, 2x square y ds. Clear? So at this point x is 2, so x is 2, the value of x is 2, so substitute the value of x is 2, so 8y dy dz ये आपका आ जाएगा. ठीक है. और यहां पर आपको ये लिमिट्स को कैलकुलेट करना है. ठीक है. इसकी वैल्यूज को आप देख लीजिए, ये जो आपको सरफेस दे रखा हुआ है वहां से आपको ये लिमिट्स को इवेलुएट करना है. क्लियर. सो y वेरीज फ्रॉम 0 to 9 minus z square under root. क्लियर. एंड z वेरीज फ्रॉम 0 to 3. क्लियर. तो आप y की वेरिएशन देखिए, y की वेरिएशन देखिए. ठीक है. और जो z की वेरिएशन है उसको आप देखिए, z वेरीज फ्रॉम 0 to 3. क्लियर. तो ये आपका ये पोर्शन है, ये पोर्शन है. ठीक है ना. तो ये यहां से ऊपर तक जाएगा, ये 3 डिस्टेंस है. ओके. सो 0 to 3. ओके. सो व्हेन यू कैलकुलेट यू विल गेट 72. क्लियर. नाउ लास्ट वन इज S5 में आपको n कैप निकालना है और ये जो इक्वेशन है इसकी इक्वेशन दे रखी हुई है एंड दैट वन इज सिलेंडर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 9. ओके. तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ये आपको दे रखा हुआ है. सो कैलकुलेट n कैप इन S5. सो n कैप कैन बी इवैल्यूएटेड एज gradient f divided by magnitude of gradient f. So gradient f, from this we get 2y I cap plus 2z k cap divided by 4y square plus 4z square under root. So we obtain y I cap plus z k cap divided by 3. So that one is n cap. So this toward this direction n cap. Okay. So the value of n cap is this. Okay. Now what is the value of f dot n cap? Calculation is f dot n cap. So f dot n cap is f this dot n cap. So ultimately we get minus y cube plus 4xz cube divided by 3. Now substitute all these values after evaluating the value of ds. So n cap dot k cap, यहाँ देखिए हम ds की वैल्यू dx dy बनाने जा रहे हैं, dx dy. सो यहाँ लगेगा n कैप डॉट k कैप. तो k कैप की वैल्यू n कैप की वैल्यू ये हमारे पास दे रखी हुई है. ठीक है. तो ये बनेगा z ओवर 3. सो z ओवर 3 dx dy. Okay. So n cap dot k cap you can calculate separately. So ultimately we get dx dy divided by z over 3. अब ये सारी वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट करनी है. Okay. So when you calculate all these values, so f dot n cap ds is f dot n cap is this, ds is this. Okay. And just simplify, you will get this result. Clear. And where y varies from 0 to 3 and x varies from 0 to 2. Okay. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, z की वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है. z यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट करके ये वैल्यूज को सॉल्व करना है. ओके. सो y इज, लेट अस सपोज y इज 3 sin थीटा, z इज 3 cos थीटा, सो dy इज 3 cos थीटा d theta. Okay. So after converting this problem in polar coordinate system, right, so we obtain this value and finally you will get 108. Okay. तो आप इस टाइप की सरफेस इंटीग्रल की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए. ठीक है. अब देखो चारों पांचों इंटीग्रल्स निकल गए हैं. ठीक है. अब आप ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. सो वैल्यू अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ दिस सरफेस इंटीग्रल इज 180 डिग्री. ठीक है. तो ये जो सरफेस इंटीग्रल का कंसेप्ट है, ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि आपको एन कैप निकालना है. ठीक है. एन कैप निकालने के बाद आपको ये जो ds है इसको इवेलुएट करना है. ठीक है ना. और ds इवेलुएट करना अपने आप में एक चैलेंज है. ठीक है. कि ds आपको कैसे कैलकुलेट करना है और उसके बाद इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कैसे करना है. ठीक है. तो सिंप्लीफाई करने के बाद आप
इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने dy को मैंने चेंज किया और z को चेंज किया, और यहाँ पे dy की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ थीटा लेके आया और dx एज इट इज रखा है मैंने। dx की वैल्यू जो 0 to 2 है वही dx की वैल्यू यहाँ पर भी है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी की प्रॉब्लम को मैंने इन टर्म्स ऑफ थीटा कन्वर्ट किया हुआ है। जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन है। अगर आपका इंटीग्रल कैलकुलस में कमांड है तो आप इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, राइट। सो अल्टीमेटली वी गेट 180 आंसर। ओके, सो after solving few more problems, okay, of tangential line integral as well as this normal surface integral, now we are in position to define the statement of Green's theorem, Stokes theorem and Gauss divergence theorem. ओके, सो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के लिए हमें अभी भी वॉल्यूम इंटीग्रल को सॉल्व करना है। व्हाट इज वॉल्यूम इंटीग्रल? अभी तक हमने किया है लाइन इंटीग्रल क्या होता है एंड आल्सो नोन एज टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल सॉल्व किया, और उसके बाद आज हमने देखा है ये जो नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है, वो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम दो थ्योरम्स को सॉल्व कर पाएंगे, ग्रीन्स थ्योरम एज वेल एज स्टोक्स थ्योरम, क्लियर। और उसके बाद जब डाइवर्जेंस थ्योरम को सॉल्व करेंगे, ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम का कंसेप्ट हम लर्न करेंगे, तो उस वक्त हमें वॉल्यूम इंटीग्रल का कंसेप्ट को लेके चलना पड़ेगा। ओके, एंड नेक्स्ट 3-4 लेक्चर्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच।